Today we are just going to start our reading session. Okay, reading session will be done, and after reading we will be having a session of underlining the difficult words. So starting from the first line, we have with us Salik and Ehsan. I request Salik, to please unmute your mic and start line number one. Read in a way so that we can listen to you and we can understand what do you want to say to us. Okay, सर मैं या सालिक Muhammad Salik. First Salik, and then I will give you the chance as well. Do we have Salik with us? Okay, Salik says he doesn't have mic. So Ahsan, यस सर you may start, sir. ओके सर Yes. Roald Amundsen was born in Norway Listen, in listen, 1872. beta. Yes Bismillahirrahmanirrahim. sir. Listen. Start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala and read slowly and in a way that we can listen to you properly and we can try to understand what we want to say. Don't run the railway. Okay sir. Start. Slowly पढ़ूंगा sir. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. As a child, he read about famous British explorers. He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open despite the freezing cold Norwegian winters, so that he would be fit, strong, and ready if he got the chance to be explorer. Amundsen's family worked in the shipping industry. His but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, and she encouraged him to be a doctor. He obeyed his mother's encouraged wishes while continuing to feel about explorers. When he was 21 years old, his mother died. Amundsen left university and began his life as an explorer. Okay, going to the next one. Some of Amundsen's achievements. Yes, sir. Go to the next line. Go to the next line. सर सर ये अचीवमेंट का पढ़ना है क्या? Yes, sir. ओके सर. Some Amundsen's achievements. He has the first pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. He was in the first expedition to reach the South Pole, and on 14th December 1911. In 1926, he led a successful expedition to the North Pole. He is recognized as the first person to have reached both poles. सर आगे आगे पढ़ना है.
You need to read till the last line. Okay, sir. In early expeditions, Amundsen was part of the crew. He watched, listened, and learned some useful skills. Once on a ship trapped in ice, he observed how to doctors' hunting skills, provided the crew with fresh meat, and kept them free from scurvy. Scurvy is a disease caused by a lack of vitamin C. It can lead to illness, to loss of teeth, and death from bleeding. Sir, done. सर डन पढ़ लिया. Yes, my dear students. Now mute your mic. I will start reading again. And in the meantime, you should have a pencil in your hand so that you may underline the difficult words. So starting from unit number unit number 3, Bismillahirrahmanirrahim, a polar explorer. सर एक मिनट रुकिए, मैं जरा पेंसिल निकाल लूं. Okay. अब बताएं सर. Okay. Roald Emerson was born in Norway in 1872. आपके पास ये पोलर एक्सप्लोरर के ये तो एक would you please mute your mic? Okay, I'm muting you all so that I may explain you in a way you understand it in a better way. Okay. Sorry, starting. Rolf Emerson was born in Norway in 1872. Rolf Emerson नॉर्वे में पैदा हुए 1872 में. As a child, he read about famous British explorers. जब वो छोटे से थे ना, तो उन्होंने बहुत मशहूर बरतानवी एक्सप्लोरर्स मतलब नई नई चीजें दरियाफ्त करने वाले ब्रिटिश लोगों के बारे में पढ़ा हुआ था. ठीक है, मुख्तलिफ जगहों को दरियाफ्त करके आते थे, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जानवरों की जो है ना वो नई नई नस्लें वो दरियाफ्त करके आते थे. तो जब वो छोटे से थे तो उन्होंने मशहूर बरतानवी एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया या वो पढ़ा करते थे. He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open. कहते हैं कि उन्होंने जो है ना वो स्पोर्ट्स की टीम्स को जितनी ज्यादा उन्होंने स्पोर्ट एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लिया, उनको जितना चांस मिलता था उतनी ज्यादा जो है ना स्पोर्ट टीम्स को वो ज्वाइन करते थे. और जब भी वो सोते थे तो खिड़की के पास और खिड़की को बहुत मतलब बिल्कुल ओपन करके वहां पर सोया करते थे. Despite the freezing cold Norwegian winters, नॉर्वेजन एक इलाके का नाम है, कह रहे वहां पर इतनी ज्यादा ठंडक होने के बावजूद वो वहां पर खिड़की को खुला रख के वहां सोया करते थे. So that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. और ये खिड़की को खोल के सोने की आदत उनकी इसलिए थी ताकि वो अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कर सके, स्ट्रॉन्ग रख सके अपने आप को, और बिल्कुल वो रेडी रहे उस वक्त के लिए जिस वक्त, डिस्पाइट का मतलब है
के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ओके। डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स, हालांकि या इसके बावजूद कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडक हुआ करती थी, फिर भी वो जो है वो वाइड ओपन विंडो की तरफ जाके सोया करते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहते थे, फिट रखना चाहते थे और अपने आप को रेडी रखना चाहते थे कि किसी भी वक्त अगर उन्हें कोई चांस मिलेगा एज एन एक्सप्लोरर तो वो उसे अवेल करेंगे। जैसे कि वो जितने भी स्पोर्ट्स की टीम्स के चांस मिलते थे उन सबको वो अवेल करने की कोशिश करते थे। उसी तरह वो ये सोचते थे कि मैं अपने आप को फिट रखूंगा, जैसे ही चांस मिलेगा ना एज एन एक्सप्लोरर तो मैं उस चांस को भी मिस नहीं करूंगा। Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor. यानी ये जो अमंडसन है उनकी फैमिली जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती थी, ठीक है। शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने के साथ साथ उनकी वालदा जानती थी कि ये जो समंदरी दुनिया है वो खतरे से खाली नहीं है, और वो चाहती थी कि उनका बेटा जो है ना ये शिपिंग फील्ड से बाहर निकल जाए और हमारी तरह ना रहे, समंदरी दुनिया के अंदर मौजूद ना रहे, बल्कि वो हिम्मत दिलाती थी, इनकरेज करती थी अपने बेटे को कि आप जो है वो डॉक्टर बने। ही ओबेड हिज मदर्स विशेस, अम्मी की जो ख्वाहिशात थी वो एमंडसन उनको फॉलो करते थे, उनको ओबे करते थे, while continuing to read about explorers, और साथ साथ वो रीडिंग भी किया करते थे एक्सप्लोरर्स के बारे में। When he was 21 years old, his mother died. अम्मी का इंतकाल हो गया 21 साल की उम्र जब उनकी थी। Amundsen left university and began his life as an explorer. फिर क्या हुआ? अमंडसन जो है उन्होंने शायद डॉक्टरी वगैरह की जो उनकी फील्ड थी उसको उन्होंने हटा दिया अपनी लाइफ में से, और एज एन एक्सप्लोरर जो है वो अपनी नई लाइफ को स्टार्ट किया। सम ऑफ एमंडसन्स अचीवमेंट्स, अब यहाँ पर कह रहे हैं एमंडसन्स की कुछ अचीवमेंट्स है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए, उसे हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज ही वाज the first to pass through the northwest passage in the Arctic Ocean. कहने कि ये इंसानों में पहले इंसान थे कि जो गुजर गए जुनूबी मगरबी हिस्से से, आर्टिक ओशन के जुनूबी मगरबी हिस्से में जो सबसे पहला जाने वाला शख्स है, ही वॉज एमंडसन, ओके। रॉल्फ एमंडसन जो है वो सबसे पहले आर्टिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट पैसेज के अंदर दाखिल होने वाले या वहां से गुजरने वाले पहले शख्स थे। नाउ सी, पहले शख्स का मतलब ये हुआ कि nobody knew about that place and he was an explorer. He went for the first time to that place and he was the first person to pass through the northwest passage in the Arctic Ocean. Point number 2 says he was in the first expedition to reach the South Pole on 14th December 1911. Now expedition पहले जो है ना काफले के अंदर, पहले जो है वो ग्रुप के अंदर, पहली जो है टीम के अंदर की एक मेंबर थे। पहले सबसे पहले जो एक्सपीडिशन हुआ था जो जुनूबी हिस्से के अंदर जाने वाला पहला एक काफला बना था, पहला एक जो है ना समझे टीम बनी थी, पहली एक जो है वो उनकी जमात बनी थी। सो वहां जाने वाले लोगों में भी ये पहले नंबर पे थे ऑन 14 दिसंबर 1911 में। ओके, नेक्स्ट इन 1926 he led a successful expedition to the North Pole. 1926 के अंदर एक बेहतरीन एक कामयाब एक्सपीडिशन जो है उन्होंने नॉर्थ पोल के अंदर जारी किया, उन्होंने उसकी रहनुमाई की, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। He is recognized as the first person to have reached both poles.
अब ये दुनिया के दो जो कोने हैं, दो जो पोल्स हैं, उनमें जाने वाले ये पहले बंदे थे कि जो इधर भी पहुंचे सबसे पहले और उधर भी वहां पर भी पहुंचे, यानी नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ दोनों पोल्स को इन्होंने जो है वो रिकॉग्नाइज करवाया अपने आप को कि मैं जो है वो बंदा हूँ कि जो यहाँ पर भी पहुंचा हूँ और यहाँ पर भी। On 14 December 1911, he went to the South Pole, okay, and in 1926 he went to the North Pole, sorry, okay. अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि in the early expeditions Amundsen was part of the crew। पहले पहले जितनी भी एक्सपीडिशंस होती थी, जितनी भी जो है ना उनके टीम्स वगैरह मूव करती थी, उन मूव्स करने वाली टीमों में जो है ना एमंडसन एज अ क्रू मेंबर थे, यानी बस टीम के पार्ट थे वो। He watched, listened and learned some useful skills। जब वो टीम मेंबर थे तो वो सारी चीजों को देखा करते थे, सुना करते थे, समझा करते थे और उनकी जो है ना जो पुराने लोग थे उनकी यूजफुल स्किल्स से जो है ना फायदा उठाने की कोशिश करते थे, उसे याद रखते थे। Once on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. Scurvy is a disease caused by lack of vitamins. It can lead to illness, the loss of teeth, and death from bleeding। कह रहे हैं कि जब ये क्रू मेंबर थे ना तो एक दफा क्या हुआ कि उनका जहाज जो है वो आइस के अंदर, आइस मतलब बर्फ के तोदे के अंदर कहीं वो फंस गया। अब उसने मुशाहिदा किया, उसने वहां पे ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स की टीम ने जो है वो किस तरह से सारे क्रू मेंबर्स को ताज़ा गोश्त खिलाया, कैसे उनको जो है ना गर्म रखा, उनके टेम्परेचर को लूज नहीं होने दिया, और कैसे जो है उन्होंने ये स्कर्वी करके एक बीमारी है, उस इस बीमारी के अंदर जिसमें बॉडी से खून आना शुरू हो जाता है या दांत गिर जाते हैं या बीमार एकदम जो है ना बुखार होकर इंसान की डेथ हो जाती है या खून से डेथ हो जाती है। इतनी खतरनाक बीमारी जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, और विटामिन सी की जो कमी के से होने वाली ये बीमारी है, इसका नाम स्कवी है। और ये आमतौर पर फ्रेश मतलब यूँ समझे कि ठंडे इलाकों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से जो है ये अचानक से बीमारी होना शुरू हो जाती है। सो डॉक्टर्स की उस पूरी मेहनत को उन्होंने वॉच किया, उनकी चीजों को सुना, उसको ऑब्जर्व किया, वहां से याद किया। जब एक मरतबा जो है वो जनाब क्या हुआ था, ये इनका जहाज जो है वो एक जगह पर फंस गया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव understood this page number 23 of unit 27 of unit number 3, a polar explorer। Have you understood? Please write it in the chat box, or if you want to talk, you may talk. Any problem, beta? Till this? Alex says, I have understood. Thank you. ऐसा बेटा समझ में आया? Yes, sir, I understood. Good. And what about Umar Noorani? Umar, have you understood? No, sir. Very good. Umar says that he has not understood this. Let me explain this in Urdu so that Umar understand this. देखिए बेटा, एक राइटर है यहाँ पर, उन्होंने जो है एक आपके पास चैप्टर लिखा है, उस चैप्टर का नाम है पोलर एक्सप्लोरर। पोलर एक्सप्लोरर मतलब क्या है? दुनिया के कोनों के बारे में दरियाफ्त करने वाला। वो जो दरियाफ्त करने वाला, नई चीज दिखाने वाला बंदा है, उसका नाम है रॉल्फ एमंडसन। नॉर्वे में पैदा हुए 1872 में। छोटे से थे तो बर्तानिया के मशहूर एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा करते थे, स्पोर्ट्स की टीम्स को बहुत ज्वाइन करते थे, और ठंडक होने के बावजूद वो अपनी खिड़कियों को खोल के सोया करते थे।
ताकि जब भी जिंदगी में उन्हें कभी एक्सप्लोरर होने का मौका मिले तो वो जो है उसके लिए फिट हो, स्ट्रांग हो, फिट हो, रेडी हो। अच्छा, उनकी अम्मी चाहती थी कि वो डॉक्टर बने और अम्मी की वो बहुत ज्यादा खिदमत करते थे, उनका कहना मानते थे। अच्छा, जब अम्मी का कहना मानते थे तो अम्मी ने जैसे बताया वैसे वो डॉक्टरी की तरफ चले गए। लेकिन फिर अम्मी के इंतकाल के बाद जो है उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सप्लोरर शिप को, यानी एक्सप्लोरर वाली जो कहानी है उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया दोबारा से। अच्छा, एमंडसन जो है ना, उन्होंने देखा कि दुनिया में जो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पैसेज, यानी आर्टिक, एक समंदर का नाम है आर्टिक ओशन, उस ओशन के जुनूबी मगरिबी हिस्से में जाने वाले सबसे पहले बंदे थे। 1914 के अंदर एक टीम बनी थी जो कि साउथ पोल की तरफ जाती थी, उस टीम के भी सबसे पहले मेंबर थे। 1926 के अंदर नॉर्थ की तरफ जाने वाले, यानी एक तो है जुनूब की तरफ और एक है शुमाल की तरफ जाने वाले, भी वो जो है पहले बंदे हुआ करते थे। यानी उन्होंने अपने आप को एक ऐसा शख्स साबित किया कि वो दोनों पोल्स की तरफ जो है वो आराम से चले गए। अच्छा, अपनी शुरू शुरू की एक्सपीडिशंस के अंदर, शुरू के टीम्स के साथ जब वो जाते थे तो वो इस मेंबर के तौर पर जाते थे। तो वो देखते थे, सुनते थे, याद करते थे वो सारी यूजफुल स्किल्स के जो उस वक्त वहाँ उनके सीनियर्स उनको सिखाते थे। और फिर कह रहे हैं कि एक दफा क्या हुआ, एक कश्ती फंस गई आइस में। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टरों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेश फ्रेश मछलियां पकड़ के या जो भी है खाना वाना, उनको दूसरे सारे मेंबर्स को जो है ना फ्रेश मीट खिलाया। और उन्होंने हर तरह से जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, हर तरह से ये स्कवी करके एक बीमारी है उससे लोगों की जान को बचाया, जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांत चले जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, आपको खून निकलना शुरू हो जाता है बॉडी पार्ट्स में से। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप बताएं बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? लो, जिन साहब को हम समझा रहे थे उन्होंने ग्रुप छोड़ के वो चले गए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना रखते हैं। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। आपको करना क्या है, यू विल बी मेकिंग द टाइटल पेज। टाइटल पेज सबसे पहले आपको बनाना है। टाइटल पेज में आप ओके लिखेंगे सर। पोलर एक्सप्लोरर वगैरह लिखेंगे। टाइटल पेज के बाद फौरन ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे एंड यू विल बी राइटिंग द वर्ड एंड मीनिंग्स। आपके पास बुक की पेज नंबर 27 पे जो वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, you will be writing all those word meanings, okay, and then our other work will be started. So for today's class this is okay. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह हाफिज सर।